Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. Today we will start our new chapter that is acid and base concept. In this chapter, you will study the different type of acids and bases, as well as the concept which explain the nature of acids and bases, and Share principle, as well as relative strength of acid and bases, and other topics. So, in your first lecture, you will study the different type of concept which explains the behavior of acids and bases. So, let's start our topic. Uh, There was a time when it became possible to identify acids and bases by litmus paper. It means litmus paper, like you can see here, litmus paper is any substance which differentiate between acids and bases nature. Acid has a property that it turns the litmus paper blue to red. There are two type of litmus paper. One type is known as blue litmus paper and other type is known as red litmus paper. For acids, when blue litmus paper is dipped in the solution of acid, then its color is changed from blue to red. And another litmus paper which is known as the red litmus paper, and when base is added in them, the color of red litmus paper has been changed to blue. So we can say that these are the criteria which can judge the nature of acids and bases. But what are the acids and bases? For this, there are different types of concepts, and each concept has some limitation as well as drawbacks. So a new theory was proposed, which was explain or broader the concept of acids and bases than the previous one. So we will see the different definitions of acid and bases. In this chapter, you will study three main theories. One is Arrhenius theory, other is Lowry and Bronsted concept, and the third one is known as the Lewis concept. First, you will see the Arrhenius theory of acid. Arrhenius theory was explained by a Swedish chemist whose name was Svante Arrhenius. You can see here the picture of Svante Arrhenius. He put forward a theory of acid in the 1880s. Right, dear student, we can say that according to Arrhenius concept, that an acid is a substance that dissociate in aqueous solution to give H positive ion. It means any substance which give H positive ion in aqueous solution, that uh, acid, that is categorized as an acid. So, according to Arrhenius concept, the aqueous medium is necessary for the to determine the behavior of an acid or base. Here you can see an example of Arrhenius concept that in general, when any acid is dissolved in aqueous medium, it will produce two type of ion. One is known as H positive ion and other is known as a chloride ion. So, as you have seen earlier, that according to Arrhenius concept, acid is a substance that dissociate in water to produce H positive ion. So, HCl will fulfill the definition of acid according to the concept of Arrhenius theory. So, there are another acidic species which produce the same type of behavior like HBr, HCl, which is known as hydrochloric acid, HNO3, nitric acid, H2SO4, sulfuric acid, CH3COOH, uh, acetic acid are also known as vinegar, and hydrogen cyanide, that is ACN. All are these acids which liberate a positive ion when dissolved in water. So you can write the equation of these acid according to this concept. Here I have drawn only three example, where in your textbook you can see 4 to 5 example. So you will have to prepare all the example of an acids. Now we will see the definition of acid according to the concept of Arrhenius theory. These are the example where you can see the common household bases.
According to Arrhenius theory, a base is a substance that dissociate in aqueous solution to give hydroxyline. It means you can see here the OH negative ion, which is also known as the hydroxyline, which is produced when any base is dissolved in water to liberate OH negative ion. So you can see here the example of neutralization, that when any acid is combined with base, they will produce salt as well as water. Now these are the simplest concept of Arrhenius theory, but there are too many limitation of Arrhenius theory. That number one is this concept is limited to aqueous medium only. As you have seen in definition that an acid or basis will produce H positive ion and OH negative ion respectively in aqueous medium only. So this is the major drawback of Arrhenius theory, that it fails to explain the behavior of acid and bases in non-aqueous solvent like ammonia, sulfur dioxide, and alcohol. It means when the acid and bases which are dissolved in non-aqueous solvent like ammonia, sulfur dioxide, and alcohol, they we cannot determine their acidic or basic nature. So this concept is applied on a large scale on aqueous medium only. Second is that according to Arrhenius concept, Arrhenius acids are those which furnish mean produce, which produce H positive ion in water. H positive ion is nothing but a proton. Uh, According to Arrhenius concept, H positive ion is also known as a hydrogen ion, or we can say that a proton, which is not capable of independent existence. तो बच्चों, जैसे आप लोगों ने यहाँ देखा कि हम ये कहते हैं कि एसिड्स वो होते हैं जो एच पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं। तो आप जानते हैं कि जो एच पॉजिटिव आयन है, ये अपना एग्जिस्टेंस को इंडिपेंडेंटली जो है ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है, अगर ये सोल्यूशन में प्रेजेंट है तो ये फौरी तौर पे किसी चीज़ से मिलके किसी और चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम ये कहते हैं कि पॉजिटिव आयन कुछ भी नहीं है, बल्कि एक ये जस्ट प्रोटॉन है, लेकिन ये इस काबिल नहीं है कि ये अपने आप को इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सके। Number third है कि there are number of substance like sulfur dioxide, that is SO2, sulfur trioxide SO3, NO2, that is nitrogen dioxide, which do not contain H positive ion but behave as an acid. Similarly, the compounds like calcium oxide, magnesium oxide, anhydrous ammonia, and sodium carbonate, which do not contain OH negative ion but they also behave as an acid. तो आप इन कंपाउंड के अगर स्ट्रक्चर को देखें बच्चों, SO2 और SO3 में, इनकी नेचर जो है वो एसिडिक है। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि SO2 और SO3 के अंदर कोई भी आपको प्रोटॉन नज़र नहीं आ रहा है। इट मीन अगर इनके अंदर प्रोटॉन ही नहीं है, तो फिर तो आर्हीनियस के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इनको एसिड्स नहीं होना चाहिए। इन द सेम वे अगर आप देखते हैं कि जितने भी अल्कली मेटल या अल्कलाइन मेटल के ऑक्साइड होते हैं, उनकी नेचर बेसिक होती है। अब अगर आप इस आर्हीनियस कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग ये है कि बेसिस वो होती हैं जिनमें ओ एच नेगेटिव आइन हो, लेकिन इसके अंदर कोई ओ एच नेगेटिव आइन नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आर्हीनियस का कंसेप्ट है, जो आर्हीनियस का कंसेप्ट है, वो इस डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहा होता। तो इन कंपाउंड की नेचर को जो है वो आर्हीनियस थ्योरी इनके एसिडिक और बेसिक होने के बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं करती। फोर्थ वन जो इसका है, दैट इज दी कि जब भी HCl और NH3 एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन्वॉल्व होता है, तो इट डज नॉट इन्वॉल्व H पॉजिटिव आइन एज वेल एज OH नेगेटिव आइन। अब वो कहते हैं कि इनके अंदर देखें एच पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन मौजूद नहीं है। जैसे आप लोगों ने यहाँ देखा था कि जब भी एसिड और बेस मिलते हैं तो हम ये कहते हैं वाटर प्रोड्यूस होता है। इट मीन एसिड से एच पॉजिटिव आयन और बेस से क्या मिलता है? OH नेगेटिव आयन। तो जब ये दोनों मिलते हैं तो इससे न्यूट्रलाइजेशन, दैट इज वाटर एंड साल्ट की फॉर्मेशन होती है। लेकिन अगर आप ये बात अप्लाई करें HCl और अमोनिया में, तो HCl के अंदर तो बात राइट है कि इससे पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होगा, बट फॉर अमोनिया it doesn't produce OH negative ion, so we cannot say that the neutralization reaction will take place between HCl and ammonia according to the concept of Arrhenius theory, because they do not involve the combination of H positive ion and OH negative ion. Similarly, another reaction that is known as calcium oxide and sulfur dioxide, when both these are combined with each other, they also don't produce the H positive ion and OH negative ion, so their behavior cannot be determined by Arrhenius theory. So these are the four major drawbacks for Arrhenius theory. So to fulfill the limitation and explain the other
compounds we don't contain acids and bases, we don't contain H positive ion and OH negative ion. Their behavior can also be understood by the concept of Lowry and Bronsted. These are the scientists in 1923. One is known as Jones Bronsted, a Danish chemist, and another scientist, which is an English chemist, whose name is Thomas Lowry. So the concept, that is the Lowry Bronsted, according to the name of these scientists, has been proposed. According to this concept, both scientists had worked independently of each other, but they both arrived at the same definition. इनका मतलब क्या है कि इन दोनों साइंटिस्ट ने अलग अलग काम किया था, एक साथ काम नहीं किया था, और जब इन्होंने अलग अलग काम किया तो इन्होंने डेफिनेशन भी उसके अकॉर्डिंग ही जो थी वो दोनों की डेफिनेशन सेम ही थी। तो उनके मुताबिक क्या था कि एसिड वो सब्सटेंस होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स होते हैं या वो आइंस होते हैं। याद रखिएगा, एसिड्स के लिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ऐसी स्पीशीज जिसके अंदर मॉलिक्यूल हो, आइन हो या फिर सब्सटेंस कोई भी हो, उनके अंदर टेंडेंसी हो प्रोटॉन को डोनेट करने की। इट मीन हर वो चीज़ जो प्रोटॉन देती है, दैट इज नोन एज एसिड। जबकि ये डेफिनेशन अब आप कहेंगे कि मिस आर्हीनियस के कंसेप्ट से मिलती है, बिल्कुल ये राइट चीज़ है, लेकिन अगर आप बेस की डेफिनेशन देखेंगे तो वो इसकी टोटली चेंज है। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि बेस वो सब्सटेंस मॉलिक्यूल या आयन होते हैं जिनके अंदर टेंडेंसी होती है कि वो प्रोटॉनों को एक्सेप्ट कर सकते हैं। जबकि उस केस में आपने पढ़ा था OH नेगेटिव आयन हो, ठीक है। लेकिन इस केस में हम क्या कह रहे हैं कि बेस वो सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर टेंडेंसी होती है कि वो एक्सेप्ट कर सकते हैं प्रोटॉन को फ्रॉम एनी अदर सब्सटेंस से, ठीक है। जैसे अगर आप इस एग्जांपल में देखें, लाइक HCl when deal with water they will produce hydronium ion as well as chloride ion. So here the function of an acid is to produce a proton. It means HCl will produce H positive ion, so it can act as an acid. While in case of H2O, H2O has a tendency to accept a proton from HCl. So when water will accept a proton from HCl, it means it gain an proton. As a result, it will produce hydronium ion. So the behavior of water as an is base. In the same way, you can also see another reaction, which is a reaction for nitric acid with water. When nitric acid will react with water, they will also produce hydronium ion as well as nitrate ion. Here, the function of HNO3 is an acid, while the function of water is to behave as a base. In the same way, the same reaction you can also write here for sulfuric acid in two steps, because in first step they will produce bisulfate ion, and in another reaction again bisulfate ion will produce a positive ion, which is gained by the uh, while water will gain the proton of bisulfate ion. As a result, it will again convert it into hydronium ion and sulfate ion. सो स्टूडेंट, यहाँ से हमें ये पता चला कि यहाँ पे हमारे पास वाटर का बिहेवियर यहाँ पे किसके तौर पे एज अ बेस है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड ने या सल्फ्यूरिक एसिड ने क्या किया, अपने प्रोटॉनों को लूज किया था। तो हर वो चीज़ जो प्रोटॉन लूज करती है दैट इज नोन एज एन एसिड, और हर वो चीज़ जो प्रोटॉन गेन करती है दैट इज नोन एज अ बेस। तो यहाँ इन दोनों एग्जाम्पल में आपने नोट किया कि यहाँ वाटर का बिहेवियर क्या है, एज अ बेस है, ठीक है। वाटर का बिहेवियर यहाँ पे एज अ बेस है। अब आप इसके अंदर देखिएगा कि यहाँ अगर आप नोट करें तो अमोनिया क्या कर रही है, अमोनिया अपने अंदर से जो है वो वाटर जो हम यहाँ पे क्या करेगा, एक प्रोटॉन लूज करेगा, और वो जो प्रोटॉन लूज करेगा वो किसको दे देगा, अमोनिया को। इट मीन वाटर ने यहाँ पे प्रोटॉन लूज किया है, तो हर वो चीज़ जो प्रोटॉन लूज करती है दैट इज नोन एज एन एसिड। वाइल अमोनिया ने एक प्रोटॉन इससे गेन किया है, तो अमोनिया क्या होगा, एक बेस होगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा अमोनियम आयन, ठीक है। ये पॉजिटिव आयन इसके ऊपर है और ये इस नेगेटिव आयन भी इसके ऊपर लिखना था, तो वो शायद स्लाइड में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। तो फिर हमें यहाँ से आइडिया हुआ कि ये जितनी भी चीज़ें हैं जिसके अंदर अमोनिया जो है वो क्या कर रही है कि वो प्रोटॉन को गेन कर रही है, और किससे गेन कर रही है, फ्रॉम वाटर के मॉलिक्यूल से। एज ए रिजल्ट इट इज कन्वर्टेड इनटू अमोनियम आयन एज वेल एज हाइड्रोक्साइड आयन। तो यहाँ वाटर का बिहेवियर याद रखें, इस एग्जाम्पल में वाटर का बिहेवियर एज अ बेस था, जबकि इस एग्जाम्पल में वाटर का बिहेवियर एज एन एसिड है। तो इट मीन यहाँ से पता ये चला कि कुछ स्पीशी ऐसी होती हैं जो किसी दूसरी चीज़ के साथ रिएक्ट करे तो वहां पे वो क्या बन जाती हैं, एसिड, और सम टाइम वो क्या बन जाती हैं, बेस। तो इसको बोलते हैं डबल स्टैंडर्ड, और इन टर्म ऑफ केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इसको हम नाम देते हैं एम्फोटेरिका, या फिर सेकंड नेम होता है इसका एम्फीप्रोटिका। ये सब such substance like water, bicarbonate ion and bisulfate ion which can act as an acid. It mean कि sometime वो acid बन जाते हैं,
एज वेल एज वो क्या बन जाते हैं, बेसिस भी, यानी वो प्रोटॉन को ले भी लेते हैं, प्रोटॉन को डोनेट भी कर देते हैं। तो ऐसी चीज़ें या ऐसे सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, एम्फोटेरिक, या उसको हम सेकंड नेम क्या देते हैं, एम्फीप्रोटिक, ये दोनों इसी के ही नेम है। ठीक है, तो एनी सब्सटेंस विच कैन एक्ट एज बोथ एन एसिड एंड बेस इज सेड टू बी अ एम्फोटेरिक। तो बच्चों अगर आप इसकी एग्जांपल देखें लोरी ब्राउनस्टेड की, तो आपको ये पता चलेगा कि इसके अंदर आपने अमोनिया में अभी ये बिहेवियर स्टडी किया कि वाटर से जो है वो प्रोटॉन डोनेट हुआ किसको, अमोनिया को, अमोनिया ने प्रोटॉन गेन किया था तो ये बेस बन गई, इसने प्रोटॉन लूज किया था तो ये क्या बन गया था, एसिड। तो इसके कंसेप्ट के अकॉर्डिंग सेम यही चीज़ आप देख सकते हैं फॉर एच एफ के लिए, कि एच एफ और वाटर जब ये आपस में कंबाइन होते हैं तो अगेन एच एफ ने प्रोटॉन को लूज करना है, तो जो चीज़ प्रोटॉन लूज करती है वो एसिड कहलाती है, और हर वो चीज़ जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है दैट इज नोन एज अ बेस। तो यहाँ पे एच एफ जो है वो एसिड है और एच टू ओ यहाँ पे क्या है, बेस है। तो ये तो हो गया इसका सिंपल सा कंसेप्ट। तो ये वैसे सारी चीज़ें बच्चों आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में इसको डिटेल से इनकी स्टडी की हुई है, लेकिन ये आपको चूंकि आपके टॉपिक की डिटेल में शामिल है और जनरल कंसेप्ट आपकी टॉपिक की डिटेल में शामिल है, तो इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ से करवा रही हूँ। तो ये वैसे आपको बताने के लिए है कि जो वेस्प है जिसे हम शहद की मक्खी कहते हैं, इसका जो डंग होता है उसकी नेचर बेसिक होती है। तो इसको अगर आपने ट्रीट करना हो तो लेमन जूस से या विनीगर के साथ इसको डील किया जाता है। इसी तरह ये जो चूंटियाँ होती हैं या ये जो भीड़ें होती हैं, तो उनकी जो स्टिंग होता है उनकी नेचर एसिडिक होती है, और इसको हम न्यूट्रलाइज करने के लिए बेकिंग सोडा इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, इसी थ्योरी का जो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज नोन एज द कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस पेयर। अगर आप इसको देखें तो हम ये कहते हैं कि इसमें एसिड और बेसिस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ पेयर। ठीक है, तो हर वो चीज़ जो पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, जैसे अगर आप यहाँ देखें कि याद रखिएगा कि ये एक एसिड है लाइक CH3COO, जिसका नेम क्या है बच्चों, एसिटिक एसिड। एसिड से जो उसकी उलट चीज, कॉन्जुगेट का मतलब होता है इनवर्स हो जाना। तो जब कोई एसिड वाटर में डिजॉल्व होता है तो ये एक नेगेटिव आयन एज वेल एज पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है। तो इस एसिड के अंदर प्रोटॉन निकलने के बाद पीछे क्या बचता है, ये वाला नेगेटिव वाला पोर्शन। तो एसिड से जो चीज डिराइव होगी उसको आपने उलट कर देना है, यानी अगर एसिड है तो इससे क्या बनेगा, बेस। लेकिन इससे पहले आप क्या लफ्ज लगाएंगे, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब होता है रिवर्स, उलट, यानी जिसका पोर्शन जो डिराइव होगा एसिड से, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। हर एसिड की कॉन्जुगेट बेस होती है, इन द सेम वे हर बेस का एक कॉन्जुगेट एसिड होता है। ठीक है, तो एसिड ने यहाँ क्या किया, कॉन्जुगेट बेस जो है वो बनाई। और यहाँ पे बेस इसे हम क्यों कह रहे हैं, उसकी रीज़न ये है कि अब अगर आप इस रिएक्शन को देखें तो ये रिएक्शन हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है। इट मीन रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब ये है कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी प्रोसीड हो रहा है एज वेल एज स्टूडेंट इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन में भी प्रोसीड हो रहा है। तो इस बेस के पास एबिलिटी है कि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है फ्रॉम हाइड्रोनियम आयन। तो हर वो चीज़ जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है अकॉर्डिंग टू दी कंसेप्ट ऑफ लोरी एंड ब्राउनस्टेड, तो वो चीज़ क्या बन जाती है, बेस। तो चूंकि इसमें अगेन प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी है तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये बेस है। तो इससे पता ये चला कि हर एसिड की क्या होती है, एक कॉन्जुगेट बेस होती है। ठीक है, तो इसी तरह हमें ये पता चला कि एसिड से ये तो एग्जाम्पल थी हमारे पास एसिटिक एसिड की, और ये एग्जाम्पल है बच्चों आपके पास HBr की। ठीक है, तो HBr अगेन यहाँ पे क्या है, एक एसिड है, इसने प्रोटॉन के साथ इसका रिएक्ट किया। ये एरो बच्चों सॉरी इधर डालना था, तो इसमें शायद आई थिंक कोई प्रॉब्लम हुई है। तो ये इससे हाइड्रोनियम आयन एज वेल एज ब्रोमाइड आयन डेवलप हुआ है। तो यहाँ देखें H पॉजिटिव आयन निकलने के बाद पीछे क्या बचा है हमारे पास, दैट इज Br नेगेटिव आयन। तो आपको भी बताया था कि हर एसिड की क्या होती है, एक बेस होती है, उसको हम क्या लिखेंगे, कॉन्जुगेट बेस। इसी तरह अगर ये बेस है ना तो इससे जो पोर्शन डिराइव होगा उसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेट एसिड। एसिड इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये इसलिए पॉजिटिव आयन अपने अंदर से एक प्रोटॉन को लूज करने की एबिलिटी रखता है, और ये प्रोटॉन ब्रोमीन एटम, ब्रोमाइड आयन जो है सॉरी, वो गेन कर सकता है, और ये रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में होगा और अगेन HBr की फॉर्मेशन हो सकती है। तो इससे हमें क्या पता चला कि हर एसिड की क्या होती है, एक कॉन्जुगेट बेस, और इसी तरह हर बेस की क्या होती है, एक कॉन्जुगेट एसिड। इन द सेम वे बच्चों आप इसी रिएक्शन को फॉर अमोनिया के साथ भी देख सकते हैं कि अमोनिया के अंदर प्रोटॉन को गेन करने की एबिलिटी है।
तो इसने प्रोटॉन को गेन किया, तो ये अमोनियम आयन में कन्वर्ट हुआ। तो अभी आपको बताया था कि जिस तरह हर एसिड की कॉन्जुगेट बेस होती है, इसी तरह हर बेस की कॉन्जुगेट एसिड होता है। तो अगेन इसके अंदर एक प्रोटॉन को लूज करने की एबिलिटी है, तो इसलिए हम इसको एसिड कह रहे हैं, और ये इसके साथ रिएक्ट करके रिएक्शन को रिवर्स डायरेक्शन में कर सकता है। In another example again, sulfuric acid will produce its conjugate acid, like it will produce H3O positive ion, जबकि इसका ये क्या कहलाएगा, HSO4 negative ion, that is known as the conjugate base। क्योंकि आपको बताया कि हर वो चीज़ जो कि एक दफ़ा प्रोटॉन लूज कर दे, तो जो चीज़ पीछे बचती है, तो एसिड की क्या होती है, conjugate base होती है। इन अनदर एग्जाम्पल अगेन, अमोनिया और H2S जब आपस में रिएक्ट करेंगे, तो अमोनिया जो है वो कंजुगेट एसिड एज वेल एज कंजुगेट बेस की भी यहाँ पे फॉर्मेशन होगी। तो बच्चों, ये तो हमारे पास कंसेप्ट था लोरी एंड ब्राउनस्टेड का। आपकी बुक में कुछ टेबल भी बने होंगे, उसको आप लोगों ने तैयार नहीं करना। आप लोगों ने ये कॉन्जुगेट एसिड बेस का और जितनी एग्जांपल हैं उसको अच्छी तरह से लिख के प्रैक्टिस करें, और उसकी जो है वो आप लोगों ने तैयारी करनी है। उसके बाद बच्चों, हमारे पास थर्ड वन कंसेप्ट है इस जिसको हम बोलते हैं बच्चों ल्यूविस कंसेप्ट। ठीक है, तो ल्यूविस कंसेप्ट को अगर हम देखें, तो अकॉर्डिंग टू ल्यूविस कंसेप्ट हम ये बात करते हैं कि पहले जो आप लोगों ने बच्चों एग्जाम्पल देखी वो सारी की सारी सिंपल थी, लेकिन इसके अंदर हम ये कहते हैं कि एसिड जो है वो ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो कि प्रोटॉन के पेयर को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, according to Lewis concept, acid is any molecule, ions or radicals that can accept one or more electron pair। कि वो एसिड क्या करेगा, एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉनों के पेयर को एक्सेप्ट करेगा। वाइल, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर का नाम देते हैं। लेकिन अगर आप बात करते हैं बेस की, तो बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो कि क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों के पेयर को डोनेट करते हैं, तो इसलिए वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर कहलाते हैं। जबकि एसिड क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर कहलाते हैं। तो इससे हमें पता चला कि जो हमने अभी बात की कि एसिड के अंदर इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी है, तो क्वेश्चन ये राइज होता है, ये इलेक्ट्रॉन के पेयर जाते कहाँ हैं। तो इलेक्ट्रॉनों के पेयर बच्चों जाते हैं उनके वैकेंट ऑर्बिटल्स में। अब ये बात आपको समझाती हूँ बच्चों बोर्ड पे। हमने चैप्टर नंबर डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर स्टडी किया था। तो वहाँ आपको बताया था कि जितनी भी मेटल्स होती हैं, ठीक है, मेटल्स के अंदर क्या होते हैं, मेटल्स हैव वैकेंट ऑर्बिटल्स। ठीक है, मेटल्स के अंदर क्या पाए जाते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा था कि जितनी भी ये 3D की सीरीज थी, उनमें 3p 3d 4s के ऑर्बिटल्स खाली स्टेट के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो मेटल्स के अंदर क्या होते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, और वो वैकेंट ऑर्बिटल जो हैं वो अभी आपको बताया कि वो एग्जिस्ट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ 3D। जैसे आप लोगों ने अगर एक इलेक्ट्रॉन एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद हो, तो 3D होते हैं, 4s होते हैं, 4p होते हैं, एज वेल एज ये जो है वो वैकेंट ऑर्बिटल इसके अंदर पाए जाते हैं। तो अभी हमने बात की कि ये जो है वो आप लोगों को याद होगा कि ये जो मेटल्स होती हैं इनके अंदर इलेक्ट्रॉनों के पेयर को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी है। ठीक है, ये क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों के पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो हर वो चीज जो इलेक्ट्रॉनों के पेयर को एक्सेप्ट कर ले, दैट इज नोन एज एसिड। ठीक है, इसको हम क्या लिखते हैं, एसिड। तो एसिड के लिए भी हमने क्या क्राइटेरिया सजेस्ट किया कि एसिड्स वो स्पीशीज होती हैं वो जिसके अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों के पेयर को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी पाई जाती है। तो चूंकि हमारे पास मेटल जो है जितनी भी होती हैं मेटल्स, उनके अंदर वैकेंट ऑर्बिटल्स खाली ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट करते हैं, लाइक 4s 4p 4d। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये जो है वो जो इलेक्ट्रॉनों के पेयर को लेती हैं वो अपने इन वैकेंट ऑर्बिटल में रख लेती हैं। एज ए रिजल्ट ये मेटल्स का बिहेवियर क्या हो जाता है, फिर एसिडिक हो जाता है। तो ये तो हो गई बात इस हवाले से। अब बच्चों हम चलते हैं वापस अपने टॉपिक की स्लाइड की जानिब। तो इससे हमें क्या पता चला कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर वैकेंट ऑर्बिटल हो, वो क्या करेगा, वो अकोमोडेट करेगा इलेक्ट्रॉनों के पेयर को, और हर वो चीज जो इलेक्ट्रॉनों के पेयर को अकोमोडेट करे, दैट इज नोन एज अ ल्यूविस एसिड। जबकि आपने नोट किया कि जो अमोनिया के मॉलिक्यूल थे, अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर होता है, और हर वो चीज जो कि लोन पेयर को डोनेट करती है, जिसे हम अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का भी नाम देते हैं, दे कैन बिहेव एज अ ल्यूविस बेस। तो इस तरह से जब भी कोई एसिड और बेस मिलते हैं, यानी मेटल का अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा लें या दीगर चीज़ों के साथ करवा लें, तो उसको हम डोनर
एक्सेप्टर रिएक्शन या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का भी नाम देते हैं, क्योंकि आप देखेंगे अभी इसी रिएक्शन में आगे चल के कि इनसे एट द एंड जो है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। उसके बाद बच्चों हमारे पास टोटल जो है वो 4 पॉइंट्स है ल्यूइस कंसेप्ट के, जो कि आपके सिलेबस के अंदर जो है वो उसको बहुत डिटेल से जो है वो इंक्लूड किया गया है, तो ये आप लोगों ने बहुत डिटेल के साथ इसकी स्टडी करनी है। तो सबसे पहला है जी कि मॉलिक्यूल्स whose central atom has vacant p orbital or incomplete octet of electron in its valence shell, कि वो ऑर्बिटल जिनके अंदर या तो इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिटल हो या खाली पी ऑर्बिटल प्रेजेंट हो, तो वो किस तरह से बिहेव करते हैं एज एन एसिड। जैसे आपको बता रहे हैं कि एग्जांपल है हमारे पास BF3 की एंड BeFi की और BH3 की। तो अगर आप इन सबको देखें, चलिए ये बातें आपको ना मैं उस पर ही समझाती हूँ बोर्ड पे ही, क्योंकि ये आपको यहाँ समझ नहीं आएंगी, ठीक है। तो पहले तो आप ये देखें कि ये हमारे पास एक एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, इसका ये फर्स्ट शेल है, देन जो है वो इसका सेकंड शेल है। तो ये एक एटम हो गया हमारे पास। इन द सेम वे अनदर एटम, ये इसका न्यूक्लियस है अगेन, और ये इसका फर्स्ट शेल है, एंड देन जो है वो इसका सेकंड शेल, ठीक है। तो अब अगर आप देखें तो हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास बेरिलियम का एटम है, और एक जो है वो हमारे पास बोरोन का एटम है, ठीक है। बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है जी 5, जबकि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 4, ठीक है। तो अब अगर आप देखें इसके अकॉर्डिंग, तो हम ये कहते हैं कि इसके पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, और सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, अगेन 2। वाइल फॉर बोरोन, बोरोन के लिए अगर आप देखें तो इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जबकि इसके सेकंड शेल के अंदर आपको 3 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। अभी जरा ड्रा करते हुए स्ट्रक्चर ऐसे हो गए हैं, तो आप लोगों ने इसको देखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो हम कह रहे हैं कि बेरिलियम और बोरोन का एटम है। तो अगर आप इनको देखें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखें फॉर बेरिलियम एटम के लिए, चले पहले हम बेरिलियम के एटम को ही स्टडी करते हैं। तो हम ये कहते हैं कि जो बेरिलियम का एटम होता है हमारे पास, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चूंकि 4 है, एटॉमिक नंबर 4 है, तो इसके पहले शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दैट इज 1s2, देन 2s2। तो ये जो है वो इसके इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं। बट फॉर बोरोन एटम दिस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन विल बी इक्वल टू 1s2, देन 2s2, देन 2px1, ठीक है। तो ये जो है वो बोरोन के एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी हमारे पास। तो ये बात मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से भी दिखाती हूँ कि आपने अभी नोट किया कि हम बेरिलियम एटम को ले रहे हैं, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, इट मीन इसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, वाइल इन केस ऑफ बोरोन एटम इसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर आप सेंट्रल एटम इन तमाम मॉलिक्यूल्स का लें, दे कंटेन 4 ऑर्बिटल, नेमली 2s, 2px, 2py एंड 2pz, बट ऑल दीज ऑर्बिटल्स आर नॉट फिल्ड। ये किसकी बात कर रहे हैं, बोरोन के एटम की बात कर रहे हैं। तो वो कहते हैं इन BeF2 मॉलिक्यूल
two orbital that is 2py and 2pz are vacant, while in bf3 and ba3 only one molecule orbital, namely 2pz, is vacant. ये बात आपको समझाती हूँ बच्चों, ये फिनोमिना है एक्साइटेशन का। तो इसको हम बोलते हैं कि ये तो थी इसकी ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ये इन एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट में थी। अब जब मैं आपको लिख के दिखाऊंगी वो होगी इनकी एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, इन एक्साइटेड स्टेट में याद रखिएगा कि जब भी हमारे पास एक्साइटेड स्टेट हो तो सिर्फ और सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन के ऊपर हम डिपेंड करते हैं। ये जो 1s2 है ये एज इट इज आता है, इसके इलेक्ट्रॉनों को आपने कुछ नहीं करना। इट मीन जो 2s वाला ऑर्बिटल है इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसका एक्साइट होगा, और वो एक्साइट होकर किस में चला जाएगा, 2px में चला जाएगा, 2px में चला जाएगा। और 2py एंड 2pz ऑर्बिटल्स क्या होंगे इसके, वैकेंट हो जाएंगे। 2py एंड 2pz ऑर्बिटल रिमेन वैकेंट। तो इन ऑर्बिटल्स के हवाले से आपको ये बात समझ आई होगी कि एक आपने हमेशा हर एलिमेंट के लिए ग्राउंड स्टेट लिखनी होती है और एक एलिमेंट की आपने एक्साइटेड स्टेट लिखनी होती है। तो बेरिलियम के का अटोमिक नंबर 4 है, बोरोन का अटोमिक नंबर 5 है। ये जो मैंने ब्लू में लिखी है ये इनकी क्या है, ग्राउंड स्टेट है, और ये जो नीचे मैंने लिखी है वो एक्साइटेड स्टेट है। इट मीन इन केस ऑफ बेरिलियम एटम इसके अंदर क्या हो रहे हैं बच्चों, 1 मिनट, आई थिंक वो रह गया लिखने में, 2pz ऑर्बिटल इसका वेकेंट होगा। अच्छा, अब अगर आप बोरोन के एटम की ड्रा करेंगे, ठीक है, तो बोरोन के एटम में एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि इसके आपने इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉनों को कुछ नहीं करना, क्योंकि हमेशा वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं किसके अंदर, बॉन्डिंग के अंदर। तो जब भी हम फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिखते हैं वो जस्ट आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनों को हम लिखते हैं, हम इसको वैसे लिखते ही नहीं है। ठीक है, तो हम सिर्फ उसे आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनों को लिखेंगे। तो 2s2 में से एक इलेक्ट्रॉन आपने एक्साइट करवाना है और एक जो है वो इसका बच जाना है। तो बचने के बाद वो अगली आपका ऑर्बिटल होगा दैट इज 2px, वो एज इट इज आएगा। उसके बाद एक और ऑर्बिटल है आपका दैट इज 2py1, वो आ जाएगा। एंड देन जो है वो आपका 2pz का ऑर्बिटल होगा और ये ऑर्बिटल आपका बिल्कुल एम्प्टी रहेगा। इट मीन इस केस के अंदर हमें क्या पता चला कि जब हम भी इसकी बात करते हैं तो इस केस में जब भी बोरोन की एक्साइटेड स्टेट होगी तो इसका 1s2 को हमें नहीं छेड़ना, हमारा कंसर्न सिर्फ आउटर मोस्ट शेल के साथ है। और आउटर मोस्ट शेल का हमें कैसे पता चला कि इनके साथ 2 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो 2 2 वाले ऑर्बिटल्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये इसका खाली आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसके अंदर से एक्साइटेशन होती है। तो आपको बच्चों बताया था कि जब भी हमारे पास एक्साइटेशन का फिनोमिना होता है तो एक्साइटेशन की वजह से क्या होते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन एस से निकल के किस में चला जाता है, हमारा 2py में चला जाएगा। तो इसलिए जो है वो यहाँ पे ये चीज़ एग्जिस्ट करती है कि एक इलेक्ट्रॉन पहले जो 2s के अंदर दो थे वो उनमें से एक इलेक्ट्रॉन 2p वाई के अंदर आया और 2py में आने के बाद ये एक उधर चला गया। इट मीन इन केस ऑफ bf के एटम में 2pz का खाली एक ऑर्बिटल वैकेंट है, वाइल इन केस ऑफ बेरिलियम एटम इन एक्साइटेड स्टेट में इसके दो ऑर्बिटल्स जो हैं वो वैकेंट है। तो उम्मीद करती हूँ ये बातें आपको समझ आई होंगी। तो इससे पता चला कि ये एलिमेंट क्या होंगे, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल हैं और अब ये एक्सेप्ट कर सकते हैं एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉनों का पेयर। इलेक्ट्रॉनों के पेयर से क्या मुराद है कि इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, यानी दो इलेक्ट्रॉन्स देना। तो हर वो चीज जो एट अ टाइम दो इलेक्ट्रॉन देती है तो उसको हम इलेक्ट्रॉन पेयर की टर्म में डील करते हैं। और यही वजह है कि ये जितनी भी चीजें होती हैं ये क्या बन जाती हैं, मेटल्स जो हैं वो कहलाती हैं। और इनको हम सॉरी ये लिविस एसिड जो है वो बन जाते हैं। जैसे अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें लाइक BeF2, तो अभी आपको बताया कि BeF2 में क्या हुआ था। अगर आप इसके व्हाइट बोर्ड पर आए जरा तो आपको पता ही चलेगा कि ये बेरिलियम का एटम है जी। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉनों के पेयर आ सकते हैं, दो। देखें इसका 2py का ऑर्बिटल मुकम्मल खाली है, 2pz का ऑर्बिटल मुकम्मल खाली है। इट मीन बेरिलियम ऐसा एटम है जो कि एट आ टाइम दो इलेक्ट्रॉनों के पेयर को एक्सेप्ट करेगा। इसी वजह से कि बेरिलियम का एटम फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, they can develop a bond with two fluorine atom as a result
इट्स कंपाउंड इज नोन एज BeF2, क्योंकि इसके पास दो ऑर्बिटल मुकम्मल खाली हैं। तो फ्लोरीन से ये पूरे जो है वो दो इलेक्ट्रॉनों के पेयर को, सॉरी, दो इलेक्ट्रॉनों को या एक इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है। तो ओवरऑल जब आप बात करेंगे तो चूंकि दो ऑर्बिटल खाली हैं तो ये दो इलेक्ट्रॉनों के पेयर को एक्सेप्ट करेगा फ्रॉम एनी टू एटम। एज a result they can make the bond with two fluorine atoms, so its compound is known as BeF2। वाइल अगर आप इसकी बात करें तो इसके अंदर अगर आप नोट करें तो आपको ये आइडिया होगा कि इसके अंदर एक ऑर्बिटल जो है वो इसका खाली होता है। तो यहाँ पे आपको, चलें टॉपिक की तरफ ही वापस चलते हैं फिर आपको समझ आएगी। तो यहाँ देखें BeF2 में क्या हुआ कि इसके अंदर इसके साथ मिलेगा और ये BeF2 भी बना सकता है। BeF2 ऑलरेडी होता है, और अगर BeF2 के अंदर फर्दर 2F नेगेटिव आइन आए तो वो BeF4 नेगेटिव 2 आइन फॉर्म करेंगे। इसी तरह BF3 है वो एक और F नेगेटिव से मिलेगा, तो सेम आपने ऐसे ही बॉन्डिंग लिखनी है और ये BF4 की फॉर्मेशन करेंगे। तो मेरा ख्याल है ये बात आपको नहीं समझ आई होगी, मैं आपको समझाती हूँ बोर्ड पे ही। ये देखिए बच्चों, ये तो कंपाउंड हो गया हमारे पास BeF2। ये BeF2 कैसे बना, जब दो फ्लोरीन एटम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन एक इसके अंदर दिया और एक दूसरे फ्लोरीन एटम ने इस खाली ऑर्बिटल के अंदर दिया। लेकिन अगर आप बात करते हैं ना इन वाले ऑर्बिटल्स की, जो कि आपके पास सेकंड वाले ये दो ऑर्बिटल हैं, ठीक है, तो ये अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहे। रीजन क्या है कि इनकी आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कंप्लीट नहीं हो पा रही, क्योंकि इन ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, एक एक इनको और चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉनों को रखने की टेंडेंसी होती है, दैट इज 2। एज ए रिजल्ट ये जो है वो किसी दो एटम के साथ, अब वो दो एटम आपके कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ इधर ड्रॉ करके। तो इसके अंदर बच्चों आता है कि एक एटम जो है वो आपका कोई भी ऐसा एटम जिसके पास एक नेगेटिव चार्ज हो वो हो सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो फ्लोरीन है इन केस ऑफ नेगेटिव स्टेट, तो F नेगेटिव स्टेट में होगा तो वो इसके साथ ओवरलैप करेगा। इसी तरह एक और जो फ्लोरीन का एटम है वो इसके साथ क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। तो अब आप यहाँ देखें BeF2 ने कितने फ्लोरीन के साथ कंबाइन हुआ, 2F नेगेटिव से। तो जब ये 2F नेगेटिव से कंबाइन होगा तो एज ए रिजल्ट इनका जो होल कंपाउंड फॉर्म होगा दैट इज नोन एज द BeF4, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, BeF4। और चूंकि सिर्फ दो फ्लोरीन पर चार्ज -2 है तो लिहाजा हम इन दो के ऊपर क्या डाल देंगे, -2। इन द सेम वे बच्चों, अगर आप यही चीज अप्लाई करते हैं फॉर दीज थ्री एटम्स, तो इसके साथ अगर आप बॉन्डिंग ड्रॉ करें तो इनके साथ अब कितने एटम ओवरलैप करेंगे, इनके साथ टोटल 3 फ्लोरीन के एटम, क्योंकि इन तीनों के पास एक एक ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। इन तीनों के साथ जो है वो क्या होगा, एक एक फ्लोरीन का एटम ओवरलैप करेगा। इट मीन एक फ्लोरीन का एटम यहाँ आएगा, इसी तरह सेकंड फ्लोरीन का एटम यहाँ आएगा, एंड थर्ड वन फ्लोरीन का एटम यहाँ आएगा। तो इस तरह से ये जो कंपाउंड बनेगा दैट इज नोन एज द BF3। तो इसको हम क्या नाम देंगे, BF3 के कंपाउंड का नाम देंगे। अब इस BF3 के पास एक ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है, इट मीन इस एक खाली ऑर्बिटल में कोई भी फ्लोरीन का कंप्लीट न्यूट्रल एटम आएगा और वो इसके साथ आके क्या कर सकता है, एक पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। एज रिजल्ट अगर एक और फ्लोरीन का एटम आए, ठीक है, और वो फ्लोरीन का एटम अगर आए तो वो इसके साथ क्या कर सकता है, ओवरलैप कर सकता है, और ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, दैट इज योर रिक्वायर्ड कंपाउंड दैट इज नोन एज BF4 नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंपाउंड डिवेल्प होगा दैट इज नोन एज द BF4। तो इस सारी डिस्कशन से हमें ये बात समझ आई कि अगर किसी एटम के पास मुकम्मल खाली ऑर्बिटल है तो उसमें कोई से दो एटम आके अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को इंसर्ट कर सकते हैं, और अगर एक एक ऑर्बिटल हाफ फील्ड है या पार्शली फील्ड है तो उसके साथ जो है वो उसकी प्रॉपर फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे हमने यही देखा कि BF3 ने एक फ्लोरीन के एटम के साथ मिलके क्या बनाया, BF3 या BF4 नेगेटिव। इसी तरह यही सेम रिएक्शन चूंकि बोरोन और बेरिलियम के ही हैं तो ये डिफरेंट तरह के कंपाउंड की फॉर्मेशन करेंगे। ये अमोनिया के साथ मिलेंगे तो इसका ये बहुत कॉमन रिएक्शन है। यहाँ पे डायरेक्शन अमोनिया से BF3 की जानिब होती है,
और चूंकि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर बोरोन के एक एटम को दे दिया जाता है। तो एक मिनट स्टूडेंट्स, मेरा ख्याल है कुछ इशू है। तो यहाँ हम ये देख रहे थे कि, चले मैं आपको ना ये बोरोन वाला आइटम जरा प्रॉपर एक दिखाती हूँ उसमें। इसी तरह बच्चों यही सेम रिएक्शन, इसको जरा मैं BF3 और नाइट्रोजन वाले अमोनिया वाले रिएक्शन को आपको भी आगे चल के समझाती हूँ। अभी आप इसको देखें, OH नेगेटिव में एक OH नेगेटिव है, इट मीन अगेन ये OH नेगेटिव इसके साथ ओवरलैप करेगा, और BF3 आपने एज इट इज लिख देना है, और OH के ऊपर एक ऑक्सीजन पर चार्ज है तो इसके बाहर आपने नेगेटिव चार्ज डाल देना है। आगे ये मॉलिक्यूल है बच्चों वाटर का, तो वाटर BF3 के साथ करेगा, क्योंकि वाटर के अंदर ये आपने लोन पेयर रूट डालने हैं जो कि इंडिकेट करेंगे कि इनके पास क्या है, ये चीजें प्रेजेंट है। तो अब मैं आपको जो है वो लेके जाती हूँ उधर ताकि आपको समझ आए। तो बच्चों अगर आप इसको फोकस करें तो यहाँ से आपको समझ आएगी कि ये BF3 है और ये एक NH3 है। तो यहाँ देखें NH3 में नाइट्रोजन का एक लोन पेयर कंप्लीटली ट्रांसफर होता है टू बोरोन एटम को। एज ए रिजल्ट चूंकि इसने अपना एक लोन पेयर कंप्लीटली इसको दे दिया है, तो हर वो चीज़ जो लोन पेयर डोनेट करती है दैट इज नोन एज अ बेस। और यही लीविस थ्योरी का कंसेप्ट था कि हर वो चीज़ जो लोन पेयर डोनेट करे दैट इज नोन एज अ बेस, और हर वो चीज़ जो प्रोटॉन के पेयर को इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करे दैट इज नोन एज एन एसिड। तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि चले अमोनिया के पास तो लोन पेयर था उसने दिया, लेकिन बोरोन ने इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट क्यों किया? तो उसकी वजह ये है कि अगर आप इसकी बॉन्डिंग चेक करें तो आप जानते हैं कि एक बॉन्ड में टोटल 2 बॉन्ड होते हैं। तो बोरोन का एक बॉन्ड क्लोरीन के साथ जब बनेगा तो इस यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 + 2 + 2 इक्वल टू क्या हो जाता है जी, 6 हो जाता है। तो अभी भी आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फुलफिल करने के लिए जो नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करनी होती है, जिसके अकॉर्डिंग हर एलिमेंट के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आए, तो बोरोन के आखिरी शेल में अभी भी 8 इलेक्ट्रॉन नहीं आए। ये मॉलिक्यूल ऐसा है जो स्टिल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये एक्सेप्ट कर सकता है कहीं से इलेक्ट्रॉन के पेयर को, क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉनों की कमी को पूरा करना है। तो इस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए ये किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉनों के पेयर को एक्सेप्ट करेगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे एरो डाल के लिखते हैं, और ये BF3 + NH3 डाल के इस तरह से हम इसके स्ट्रक्चर को जो है वो लिख देते हैं, ताकि हमें ये क्लियर हो कि इनके दरमियान में क्या हो गया है। इस तरह से ये बॉन्ड की डेवलपमेंट हो गई है, और ये एरो जो है ना वो हम यहाँ से यहाँ जो है वो लाजमी शो करते हैं। जी बिल्कुल, आप यहाँ देखें कि ये अमोनिया की वो एग्जांपल है जहाँ पे ये बॉन्ड नाइट्रोजन की साइड से बोरोन को ट्रांसफर होता है। तो इस बनने वाले बॉन्ड को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का पूरा पेयर जो है वो नाइट्रोजन से बोरोन को जाता है, तो हर वो चीज़ जो प्रोटॉन देती है, सॉरी इलेक्ट्रॉन के पेयर को देती है, दैट इज नोन एज एन एसिड। तो यहाँ पे अमोनिया की नाइट्रोजन बिहेव करेगी, सॉरी हर वो चीज़ जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करती है दैट इज नोन एज अ बेस। तो यहाँ पे अमोनिया का रोल जो है वो बेस के तौर पे होगा, और बोरोन का रोल एज एन एसिड के तौर पे होगा। तो इसी वजह से हम ये कहते हैं कि इसने एक पूरे इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट किया, और एरो की डायरेक्शन डोनर से एक्सेप्टर एटम की जानिब होती है। और जब बॉन्ड डिवेल्प हो जाता है तो फिर हम इसको नॉर्मल लिखते हैं, लेकिन ये बनने वाला बॉन्ड बच्चों कहलाता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, या इसका दूसरा नेम होता है डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड। तो उम्मीद करती हूँ ये बातें आपको समझ आई होंगी आज के टॉपिक के अंदर। तो यहाँ से हमें क्या ये चीज़ें क्लियर हुई कि
ये जो बोरोन का मॉलिक्यूल है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और ये इलेक्ट्रॉनों के पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। यही वजह है कि ये जो है वो बिहेव करता है एज आ ल्यूविस एसिड। तो यही आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताए। तो इसके अंदर जो है वो आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से, इनकी एग्जांपल जितनी भी है इन सबको तैयार करना है। मैंने एक या दो आपको समझाई है, लेकिन आप तैयार जो है वो ये सारी करेंगे। उसके बाद सेकंड चीज ये है कि वो मॉलिक्यूल जिनके सेंट्रल एटम में वैकेंट डी ऑर्बिटल जाएं, यानी वो एलिमेंट जिनके अंदर, आपको बिल्कुल स्टार्ट में बताया इस थ्योरी के कि जब हम इन एलिमेंट्स की बात करते हैं, मोस्टली जो ग्रुप नंबर थर्ड और ग्रुप नंबर फोर्थ के एलिमेंट हैं, ये जो है वो इस कैटेगरी में आते हैं जिनके अंदर क्या पाए जाते हैं, खाली ऑर्बिटल पाए जाते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। जैसे एल्यूमिनियम F3 है, अगर एल्यूमिनियम का फ्लोरीन के साथ आप बॉन्ड चेक करें तो एल्यूमिनियम ग्रुप थर्ड से बिलोंग करता है। तो ये तीन बॉन्ड जो है वो इसके साथ बना लेगा, तो इसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो इसने ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करना है। तो अभी भी ये मॉलिक्यूल जितने भी हैं, एल्यूमिनियम फ्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, गैलियम क्लोराइड, सिलिकॉन टेट्रा हेलाइड, इसी तरह जर्मेनियम हेलाइड है और ये टिन के हेलाइड हैं, क्योंकि इनमें इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। ये ग्रुप फोर्थ के लोअर मेंबर्स हैं। तो ये जो है वो इलेक्ट्रॉनों के पेयर को मजीद एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि इन तमाम एलिमेंट के अंदर खाली डी ऑर्बिटल पाया जाता है। एज ए रिजल्ट जो है वो मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन जो है इनके अंदर, तो चले 8 आ जाएंगे, लेकिन इन एलिमेंट में मोर देन 8 आ जाएंगे, जो कि एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट की कैटेगरी में आता है। तो उसकी रीजन क्या है, इसके अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल है जो कि इस रूल को फुलफिल नहीं होने देता। जैसे अगर आप यहाँ चेक करें तो 3 F नेगेटिव के एटम है, तो वो इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे और इस तरह का कंपाउंड जो है वो फॉर्म होगा। इन द सेम वे टिन टेट्राक्लोराइड 2 क्लोराइड से मिलेगा तो टिन का हेक्साक्लोराइड फॉर्म होगा। इसी तरह सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड है, वो सिलिकॉन हेक्साफ्लोराइड बनाएगा। गैलियम क्लोराइड जो है वो गैलियम टेट्राक्लोराइड। इसी तरह ये एंटीमनी फ्लोराइड है, ये इससे मिलेगा तो एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड बनाएगा। इसी तरह अगर ये एक फ्लोरीन के एटम से मिलेगा तो एंटीमनी हेक्साफ्लोराइड की फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ तक जितनी भी एग्जांपल्स हैं बच्चों, आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से लिखकर तैयार करना है। अगर इनके हवाले से आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो मोस्ट वेलकम, आप लोग कर लीजिए। तो इनको तैयार जरूर कीजिएगा ताकि आपकी जो है वो एग्जाम की तैयारी जो है वो सही रहे। और अपनी तैयारी के ऊपर बच्चों फुल फोकस करें, क्योंकि ये टाइम आपके पास बहुत शॉर्ट है। और अपनी जो टाइम है उसको पढ़ने में जो है वो इस्तेमाल करें। ओके स्टूडेंट, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।